Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG and today's problem name is flip-its. So in this question हमें एक बाइनरी array given है which is consisting of zeros and one and हमें at most one operation perform करना है such that count of ones in my array becomes maximum, right? So what is the that particular operation? So according to the operation we have to select a one sub-array and we have to flip all the elements present into that subarray. It means that if the we have one in that particular subarray, it will be turned into zero, and if we have zero into the subarray, it will be turned into the one, right? So after performing the flip operation for any particular subarray, we have to maximize the count of ones into my array, right? We can perform this particular operation that is considering the subarray and flipping the elements into it at most one. Right. It is also not necessary to perform operation. This is given into the question. We can have the maximum number of ones without with a zero number of operations as well. But in this particular example, अगर मैं let's say इस वाली सब array को consider करता हूँ and perform कर देता हूँ flip operation. So मैं after performing the flip operation for this particular sub array, my new array would be my transformed array would be this, and which will be containing the four number of ones. So the answer for this case is 4. Right? But let's say if we have this particular subarray, 1, 1, and 1. So in this particular, let's consider this is the array given to me, which is A. So in this case, we don't have to perform any operation, and we are having the maximum number of ones only in the starting itself. So the count of ones would be 3. So this would be my answer for this particular array. But in the first example which is given to us, इस केस में अगर हम इस वाली array को consider करें and उसके बाद सभी elements को flip कर दें so that my count of ones would become 4 and that would be maximum among all the possible options we have, right? So अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? So first brute force approach क्या है कि हम सभी सब arrays के पास जाएंगे एंड उसके बाद फ्लिप ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे. हम सभी सब arrays को जनरेट करेंगे, उसके बाद फ्लिप ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द फ्लिप ऑपरेशन हम काउंट ऑफ वंस basically we will count the number of ones in my transformed array, right? And the one which is giving the maximum number of ones, that would be my answer, right? So basically क्या कर रहे हैं brute force approach में, एक array है मेरे पास, उसके मैं सभी सब arrays को जनरेट करूंगा और सभी सब arrays के लिए मैं flip ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल काउंट द सो flip ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे a डैश मिलेगा, दैट would be nothing but the transformed array, and after that I will count the number of ones in my a dash. Okay, I will count the number of ones in my a dash, and after that the any particular subarray which is giving the maximum number of ones, that would be my answer. या फिर without performing operation जो initially मेरे पास count of ones थे for the array A, maximum of all the values or like maximum of all the A's without performing operation or after performing operation जो होगा that would be my answer, right? But आप देख रहे हो in order to generate all the subarrays it will take n square time because the total number of subarrays we are having is n into n minus 2. उसके बाद आप फ्लिप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर सब एरे सो इट विल टेक n टाइम एंड उसके बाद आप काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वंस इनटू इट सो इट विल टेक अनदर n टाइम. सो द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n स्क्वायर इनटू n प्लस n, सो दैट इज n क्यूब. लेट्स से कि आप प्रीफिक्स काउंट को मेंटेन कर रहे हो, उस अगर आप प्रीफिक्स काउंट को मेंटेन करते हो तो आपको जो यहाँ पे फ्लिप ऑपरेशन में एक्स्ट्रा n टाइम लग रहा है और यहाँ पे काउंट करने में n टाइम लग रहा है, दैट कुड बी डन इन अ कांस्टेंट टाइम, राइट? सो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो टू द big of n square, but we wanted to solve it in big of n time, not in n square or n cube time. So इसको n time में कैसे solve कर सकते हैं? Let's see now. So basically we will be using a cadence algorithm to solve this particular problem, right? हम क्या बोल देते हैं, मुझे flip operation perform करना है to increase the count of one. Let's consider this example. So basically instead of calculating all the subarrays, मैं del value calculate कर लेता हूँ. What is the maximum value of this del? Initially ये 0 होगा. And what is mean by del?
तो del is nothing the number of count of ones for any particular sub-array after performing the flip operation, right? For any particular sub-array minus before performing the flip operation. Count of ones before performing the flip operation for that particular sub-array. तो लेट्स से अगर मैं इस वाली array को कंसिडर कर लेता हूँ, इस वाली array को, सो इस पर्टिकुलर के लिए del वैल्यू क्या होगी मेरे पास? सो बिफोर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन मेरे पास जो काउंट्स थे वो 0 थे. आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन दिस विल बिकम 1 and 1, सो काउंट हो जाएंगे 2. सो इस केस में जो del वैल्यू होगी वो 2 होगी मेरे पास, राइट? सो मैं क्या करूंगा, जो इनिशियली काउंट ऑफ वंस थे वो तो है ही मेरे पास स्टोर्ड, जो कि इनिशियली आंसर मेरा क्या होगा, इनिशियली जो काउंट ऑफ वंस थे वो तो मेरे पास है ही, जो कि 2 है इन दिस पर्टिकुलर केस. या फिर मैं बोल देता हूँ कि काउंट ऑफ 1 प्रेजेंट इन माई एरे ए प्लस जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ del होगी दैट वुड बी माई आंसर फॉर ऑल द सब एरेज. एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि देखिए जो काउंट ऑफ वंस थे, अगर मैं ऑप्टिमली सोचूं तो जो मेरे पास ऑलरेडी वंस थे उनको तो मैं नहीं चाहता कि वो चेंज हो, वो फ्लिप हो 0 में, राइट? सो एटलीस्ट इतना आंसर तो मेरे पास डेफिनेटली होगा. उसके बाद मैं इम्पैक्ट निकाल रहा हूँ कि मेरे पास किस पर्टिकुलर सवेरे पे परफॉर्म करने से कितने मैक्सिमम, या मैं बोल सकता हूँ कि कितने मेरे पास काउंट ऑफ वंस विल इंक्रीज. यू नो, बिफोर क्या बताता है कि इतने मेरे पास वन पहले थे, आफ्टर बताता है कि आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन मेरे पास वंस इतने हो गए. सो नेट में बेसिकली इनका जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा कि डेल्टा नंबर ऑफ वंस हैव बीन इंक्रीज, राइट? डेल्टा ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा की वैल्यू क्या बताती है कि दिस नंबर ऑफ वंस हैव बीन इंक्रीज. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा हो सकती है, वो मुझे बताएगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर सर्वर इतने नंबर ऑफ वंस इंक्रीज हुए थे और इनिशियली मेरे पास इतने नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी थे. सो ओवरऑल आंसर वुड बी दिस ओनली, राइट? So this is the static value we can already pre-compute. What is the count of my ones in my given array A? अब इसको डेल्टा ऑफ मैक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंड एक कंडीशन हो सकती है, लेट्स से कि हमेशा ऑपरेशन परफॉर्म करने से काउंट ऑफ वंस मेरे जीरो ही हो रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव ही हो रहे हैं. लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. इफ मेरे पास ए ये होता है 1 1 एंड 1 एंड 1, इस दिस केस अगर मैं कोई भी सब एरे कंसीडर करता हूँ, सो मेरे काउंट ऑफ वंस जो आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन हमेशा जीरो होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर सब एरे. एंड इनिशियली मेरे पास लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल 2 थे. सो -2 बताता है कि मेरे जो काउंट ऑफ वंस थे वो 2 से डिक्रीज हो जाएंगे, राइट? बाय परफॉर्मिंग द फ्लिप ऑपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब एरे. बट वी डोंट वांट द नेगेटिव वैल्यू, इसलिए मैं डेल्टा की जो वैल्यू है पहले इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, एंड उसके बाद मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा. अब इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लीनियर टाइम में कैसे फाइंड कर सकते हैं? दैट कैन ओनली बी डन यूजिंग अ कैडेंस एल्गोरिथम ओनली. कैसे? लेट्स सी. 1 एंड 0, राइट? सो मैं क्या बोल देता हूँ कि मैं जो कैडेंस एल्गोरिथम हम सम वेरिएबल मेंटेन करते हैं, कैडेंस एल्गोरिथम इज मेनली यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एन एनी पर्टिकुलर सब एरे. मैं यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एक न्यू एरे जनरेट करूंगा जो मुझे मैक्सिमम सम फाइंड करने में हेल्प करेगी. जहां जहां मेरे पास वन है, राइट, अगर मैं उनको फ्लिप कर रहा हूँ तो मेरे पास काउंट ऑफ वंस डिक्रीज हो रहे हैं. किससे? -1 से. लाइट से किस वन को मैं 0 कर दूंगा तो इनिशियली जो मेरे पास काउंट ऑफ वन थे इस एरे में -1 से डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो एक गिवन वन था, जो एग्जिस्टिंग वन था, उसको टर्न कर दिया 0 में, राइट? बट 0 को मैं 1 में करूंगा तो मेरे काउंट ऑफ वन वुड इंक्रीज, सो +1 से इंक्रीज होंगे, राइट? सो ऐसे करके मैं एक बी डैश एरे बना लेता हूँ. इसका जो मैक्सिमम सम है वो फाइंड कर लेता हूँ. तो इस केस में जो मैक्सिमम सम है वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर सब एरे के लिए 2 आएगा, एंड इवन इसके लिए भी मेरे पास मैक्सिमम सम 2 ही आएगा इस पर्टिकुलर सब एरे के लिए. सो डेल्टा मैक्स की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2. एंड इनिशियली मेरे पास काउंट ऑफ वंस कितने थे? वो भी 2 थे. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज 4. सो मुझे आंसर ऐसे मिला. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला जो हमने यूज किया था टू कैलकुलेट द आंसर, द काउंट ऑफ वंस. और मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो इनिशियली वंस थे मेरे पास वो तो रहेंगी, क्योंकि अगर मैं ग्रेडियली सोचूं तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग वंस थे उनको तो मैं व्हाई शुड आई वांटेड टू चेंज इट टू 0, क्योंकि अगर मैं 0 में चेंज करूंगा वंस को तो वो तो मेरे आंसर को कम ही करेंगे, राइट? तो इट्स बेटर टू कीप दिस नंबर ऑफ वंस. एटलीस्ट इतना आंसर तो मेरे पास होगा ही काउंट ऑफ वंस के अलावा इक्वल. उसके अलावा मैं फाइंड करूंगा कि ऐसी कौन सी सब एरे हैं जिसके अंदर फ्लिप ऑपरेशन करने से मेरे पास काउंट ऑफ वंस इंक्रीज हो रहे हैं. और डेल्टा मैक्स बताता है कि द नंबर ऑफ वंस जो मेरे पास इंक्रीज होंगे नेट में जो परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर सब एरे.
और डेल्टा मैक्स को हम कैडेंस एल्गोरिथम के थ्रू हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा मैक्स की वैल्यू जैसे इस केस में 2 थी। एंड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, हम एक न्यू एरे बनाएंगे कोरस्पॉन्डिंग टू द एरे ए। जहां पे मेरे पास 1 था उसके कोरस्पॉन्डिंग में -1 सेट कर दूंगा। एंड वाई एम डूइंग इट, क्योंकि अगर मैं 1 को टर्न कर रहा हूँ जीरो में तो मेरे एग्जिस्टिंग काउंट ऑफ वंस डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। जहाँ जीरो है उसको अगर मैं टर्न कर रहा हूँ 1 में तो मेरे नेट काउंट ऑफ वंस इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा करने से विल बी हैविंग दिस एरे, एंड इसकी जो मैक्सिमम सम सब एरे सम जो होगा, जो कैडेंस एल्गोरिथम से हम फाइंड करते हैं, वो मेरे को डेल्टा मैक्स की वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट। एंड सो माय फाइनल आंसर वुड बी काउंट ऑफ वंस इन माय ओरिजिनल एरे प्लस डेल्टा मैक्स। नाउ लेट्स लुक एट द कोड नाउ। सो लेट्स से इनिशियली जो सम है वो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा की तरह एक्ट करेगा, एंड जो आंसर है दैट विल बी स्टोर्ड इन द मैक्सिमम काउंट ऑफ वंस। ओके, सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कैडेंस एल्गोरिथम के थ्रू डेल्टा मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जो हम कैडेंस एल्गोरिथम में करते हैं सेम चीज ही कर रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग द अनदर एरे बी, हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे उस वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वो जीरो था इट मीन्स मुझे सब में +1 ऐड करना है, राइट। जब मेरे पास ए ऑफ आई की वैल्यू 1 थी तो मुझे -1 करना है, इसलिए मैं सम की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ व्हेन माय ए ऑफ आई इक्वल्स टू 1, एंड इंक्रीमेंट कर रहा हूँ व्हेन माय ए ऑफ आई इक्वल्स टू 0। और वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, सम शुड बी नथिंग बट वी आर एडिंग 1 इनटू इट, बिकॉज बी ऑफ आई की वैल्यू जो होगी ए ऑफ आई के करस्पॉन्डिंग वो 1 है, राइट। जब मेरे पास ए में 0 था तो बी ऑफ आई की वैल्यू 1 थी, और जब ए में 1 था तो बी ऑफ आई की वैल्यू -1 थी। सो सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, इफ माय ए ऑफ आई इज 1 सो मैं सम की वैल्यू में से डिक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 को, राइट, लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट कैडेंस एल्गोरिथम से मैं रन टाइम पे जो मैक्सिमम सम है उसको फाइंड करूंगा, एंड अपने पास जब सम नेगेटिव होगा तो सम की वैल्यू को 0 सेट करते हैं। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, इसमें कुछ भी चीज नहीं है। उसके बाद जो मेरे पास काउंट ओवर्स अवेलेबल थे इन माय ओरिजिनल एरे ए, उसको मैं काउंट कर लूंगा, एंड इन दैट आई एम रिटर्निंग द आंसर। So this is the simple code for this particular solution. So guys, if you like this particular video, then please subscribe to my YouTube channel. And if you have any query, write it down in the comment section. Thank you for watching.